agreed to be with us, and we will continue to be with us. I'd like to welcome them, and I don't want to be I'm a rasik, so let me have the pleasure of sitting, in the audience and enjoying how you conduct it. I'll hand over the mic to you. Conduct it the way you want, not for evaluation of the future, but for rasa swadan that all of us are here about. Can I welcome our guests? Thank you so much, Rajiv Lochan sir. And firstly, thanks to the National Modern Arts Gallery and Rajiv Lochan ji for having us collaborate with you, and Ruchi who has put in so much of efforts, and Meghna together, the whole team who have been coordinating with. And I think if I had any inhibitions in saying that this was a dream come true day to day for me in my till now age, it'll be a lie, because I always wanted to have this kind of very multilingual sort of thing, and with such senior poets, respected poets, I think I have a job at hand which is very daunting, and there is a mix of impossibility and pleasure to introduce these three poets, because it's impossible, because how would you introduce someone who doesn't need an introduction? And the pleasure thing is, I cannot be, my heart is beating, not because I'm tense, but I'm just happy, I'm too happy. And I think that's what keeps us in the realms of poetry, the whole idea of impossibility and pleasure coming together. Thank you, sir. With your permission, I was hoping to start the discussion on poetry for a sustainable community. I have framed a couple of questions from what are some questions in my mind. Sir, you have been one of the key poets to make sustainable contribution to the development of Indian poetry in English. Also along with Adil Jasawala and Geet Patel, Dom Morris, Kolhatkar, Abra Shahid Ali. From your vast experience of being around in Indian and international poetry space, do you think poetry matters in general, and poetry matters to the society at large? Do you feel people should take poetry more seriously, or how do you perceive it? You can't have a society where poetry is not taken seriously. I agree that poetry is slowly being marginalized today, as the short story is being marginalized, as in a way drama is being marginalized, because drama costs too much. To put up a play you need a six-figure check, and it's only the novel which is really selling. But you can't have a society without poetry. I still remember Professor P. Lal telling me that in Bengal, you can't be born, you can't marry, you can't die without Tagore coming in somewhere or the other. I think for northern India, you would say the same thing about Kabir, isn't it? For the Urdu world, it is Ghalib all the time. The moment you come across a small emotional crisis, you think of a sher by Ghalib or Zauq or Mir or someone or the other, or a doha from Kabir or Tukaram if you are in Maharashtra. So the relevance of poetry can't be downplayed or sidelined. It is very relevant, and if it is not center stage, well, it can't ever be center stage, but if it is not given its proper respect, I think there is something lacking in society, not with poetry as a genre. Mangesh sir, what's your thought on the same lines? I agree with Kiki sir. देखिए, एक ऐसे समाज की कल्पना करें कि जहाँ कविता न हो, तो कैसा भयानक समाज होगा, जहाँ सिर्फ कंप्यूटर हो और कविता न हो। तो मुझे लगता है कविता के बिना समाज की कल्पना करना मुश्किल है, बट फॉर पोएट्री आई थिंक मार्जिन इज द मेन लैंड। तो वो मार्जिन पर ही रही है। कबीर कोई एक्सट्रीमली पॉपुलर रहे हों ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि तुलसी भी शायद बहुत पॉपुलर नहीं रही। तुलसी हुई द लेसर पोएट एज कम्पेयर टू कबीर। सो मुझे लगता ये है कि
कविता हाशियों पर ही रहती आई है, और ये सही है कि आज नॉवल का बाजार बहुत ज़्यादा है, एंड बाजार इज प्रमोटिंग नॉवल लाइक एनीथिंग। तो लेकिन कविता के लिए हाशिया ही उसकी मुख्य भूमि है, वही उसका मेन लैंड है। और मुझे लगता है कि कोई मूंगफली की तरह लोकप्रिय तो कविता कभी नहीं हो सकती, या वो फिल्मी गीत की तरह नहीं हो सकती है। फिल्मी गीत और कविता में एक मूलभूत अंतर, देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। सो हो सकता है फिल्मी गीत में कोई पोइटिक एलिमेंट हो, तो जैसे नीरज में है या कभी कभी गुलजार में मिलता है, तो लेकिन जो फिल्मी गीत कविता नहीं है। फिल्मी गीत जो है वो एक पब्लिक स्फीयर का एक्सप्रेशन है, और जबकि पोइट्री जो है वो पब्लिक स्फीयर में नहीं है, बल्कि वो एक पर्सनल स्फीयर है। और भले ही वो पर्सनल स्फीयर कभी कभी जो है वो एक पब्लिक स्फीयर से मर्ज कर जाता है। सो जैसे कि साहब ने कहा कि हमारे जीवन में कभी न कभी कबीर की कोई पंक्ति आ जाती है। गालिब के बारे में कहते हैं कि इस तरह का कोई टॉपिक नहीं है जिस पर गालिब ने जो लिखा ना हो। यहाँ तक कि शेर के पिंजड़े में बंद आदमी के बारे में उनके यहाँ शेर मिलता है, एक आदमी शेर के पिंजड़े में बंद है। तो मुझे लगता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर गालिब ने लिखा हो, या कि हमारी जो एथिकल जो हमारी दुनिया है, जो हमारी नैतिक दुनिया है, उसके बारे में कभी न लिखा हो। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज कविता, देखिए समाज में कवि होना जो है वो एक असोशल होना है इस समय, और आप एक असोशल एलिमेंट है अगर आप कवि हैं। भले ही हमारे कवियों की बड़ी इज्जत रही हो, जैसे आप कविता लिखना शुरू करते हैं आपकी इज्जत थोड़ा बढ़ जाती है और आपकी प्रेस्टीज बढ़ जाती है हल्की सी, और लेकिन इसी के साथ आप एक सोसाइटी से अलग होना भी शुरू हो जाते हैं कि आप सोसाइटी से अलग हैं या कुछ ऊपर हैं, यू आर अलूफ एंड अवे और यू आर अबव। सो इस तरह की चीज़ें उसके साथ जुड़ती हैं, यानी आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हैं। तो एक जो मुझे लगता है कि जिसको कविता के कीटाणु जिसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं वो कुछ अलग इस समाज से, ये बिकम्स काइंड ऑफ सोशल एंटिटी। तो ये है, और मेरा अपना अनुभव ये है कि जो छंद वाली कविता है वो तो लोगों को याद रहती है, और हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था कि छंद जो है वो कविता की उम्र है, तो वो ये कविता को मेमोरेबल बना देता है। लेकिन जो छंदहीन कविता है, बिना छंद की कविता जो हम लोग लिख रहे हैं, वो लोगों को याद कम रहती है, और वो लोगों को याद में उस तरह से नहीं बसती है। लेकिन अगर आप जो कविता को ध्यान से पढ़ें, अगर आप महसूस करेंगे कविता की ज़रूरत है, हमें जिस तरह हमें हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, जिस तरह फूलों और तारों की ज़रूरत है हमको, उसी तरह कविता की ज़रूरत है। उनका कोई तात्कालिक कोई वो नहीं है, कोई उनका इस्तेमाल नहीं है। हम तारों का क्या इस्तेमाल करते हैं? वी कांट यूटिलाइज स्टार्स, तो स्टार्स हैं, मतलब वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि कविता को शायद ज़्यादा सीरियसली लिया जाना शुरू होगा। एक इतालवी कवि एक में है यूजीनियो मोंटाले, उन्होंने एक लेख में लिखा था कि जब चंद्रमा पर आदमी के पैर पड़े, जब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचे, तो वहाँ से जो मिट्टी लाई गई, तो ये पता चला वो मिट्टी है, वहाँ ज्वालामुखी हैं, चट्टाने हैं, गड्ढे हैं, ये है वो है, आदि आदि। इसके बावजूद कि चंद्रमा के साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो जान लिए गए हैं काफ़ी हद तक, उसका रहस्य खत्म नहीं होगा, मिस्ट्री चंद्रमा ही खत्म नहीं होगी, वो तब भी उसकी मिस्ट्री बनी रहेगी। शायद यही चीज़ कविता है कि तमाम जो है साइंटिफिक फैक्ट्स, तमाम जो सीक्रेट्स उसके जब अनवेल हो जाते हैं तब भी कोई सीक्रेट बचा रहता है, यही शायद कविता है, और इसी में मुझे लगता है कविता नहीं था। जी फरहत साहब, ये जो सवाल इन्होंने किया है मैं इसी को आगे बढ़ाऊँगा। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि शायरी जो है ख़ास तौर से हिंदुस्तान में एक तरह से एक स्लोगन भी बनी आज़ादी के वक्त में, और जंगू में जज्बात उभारने का भी एक तरह से काम करती है। जैसे सर ने ये कहा कि तुलसी हूँ, कबीर हूँ या गालिब हूँ, आज भी हम इन्हें पढ़ते हैं, याद करते हैं, कहीं भी बैठे हों कोई ना कोई इनकी बनती है, शेर हमें याद आ जाता है। क्या आज जो हमारा कवि है, जो हमारा शायर है,
वो जो मूल्य धारा है, जो सोसाइटी है, क्या उससे कट गया है? क्या वजह है कि इस वक्त शायर इस समाज की, इस मुआशरे की उस तरह से इजहार नहीं कर पा रहा है, या ये मुआशरा ऐसा हो गया है जो शायर के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है? बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये ऐसा है कि टू राइट पोइट्री इज मच ईजियर दैन टू टॉक अबाउट पोइट्री। इसलिए कि जब आप शायरी कर रहे होते हैं तो आप बहते हैं अपने अंदर से, शायरी की बात करते हैं तो आपको बहुत सी अक्ल जमा करनी पड़ती है इधर उधर से। बहरहाल ये ज़रूरी भी है, इसलिए कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें ये सवाल बार बार उठाया जाता है। आज से नहीं, 100 साल से उठाया जा रहा है कि शायरी की क्या ज़रूरत है, इस पोइट्री रेलिवेंट टू आवर लाइफ, और इसके बहुत से जवाब दिए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पोइट्री इज़ ए नेसेसरी इविल और नेसेसरी वर्च्यू। लेकिन आदमी शायरी जो कुछ करती है उसके बगैर आदमी न आदमी रह सकता है, ना सोसाइटी रह सकती है। इसके बावजूद कि शायरी अलग अलग ज़मानों में, अलग अलग सोसाइटीज़ में उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो घटती बढ़ती रही है, लेकिन इसके बावजूद जब से नॉन ह्यूमन हिस्ट्री, सिविलाइज्ड ह्यूमन हिस्ट्री जब से मौजूद है, तब से शायरी मौजूद है। तो इससे ये मालूम होता है कि शायरी कुछ ऐसा काम करती है जो और फिलॉसफी नहीं करती, या सोशल साइंसेज नहीं करते, या साइंस नहीं करती, या और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं इस दुनिया में जो सस्टेन करते हैं इंसानी ज़िंदगी को, या उसको डिफ़ाइन करते हैं, या उसको बरकरार रखते हैं, वो उनसे अलग कुछ करती है। तो अब ये जो सवाल है इसमें एक तो ये कि शायरी द फंक्शन ऑफ पोइट्री एंड इट्स रोल इन हैज़ बीन चेंजिंग ओवर द ईयर्स एंड सेंचुरीज। जैसे कि मरुद ने कहा कि एक ज़माना था जब शायरों को, मसलन प्लेटो ने अपनी पब्लिक से शायरों को निकाल दिया था। उसका सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये था कि शायर जो है इस मैजिशियन, इज ए सॉर्सरर, इज एन्चेंटर, और ये लोगों को बहका देते हैं, उन पर ऐसा असर डाल देते हैं कि वो फिर किसी और काम के लायक नहीं रहते। तो ये एक कुव्वत, ताकत है शायरी की कि वो इंसानों को चारों तरफ से घेरती है, उनके इमोशंस पर, उनके पूरे जो नर्वस सिस्टम है वो उस पर कैप्चर कर लेती है, और वो उसको अपनी शर्तों पर चलाने लगती है आदमी। तो ये तो प्लेटो की बात थी, जिससे साबित होता है कि इट पॉजिट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पोएट्री। पूरे हमारे मेडिवल एजेस में शायरों को इस्तेमाल किया गया जज्बात उभारने के लिए, जंगों के लिए। हिंदुस्तान में, ग्रीस में क्रूसेड्स के दौरान फ्रेंच और इंग्लिश जो वॉरियर्स थे उनके साथ पूरे जत्थे चलते थे शायरों के और म्यूजिशियंस के, जो जोश दिलाते थे। हिंदुस्तान के अंदर भी पूरे सिलसिले थे ये, अरब में और सारे कल्चर्स में ये बात रही है। तो एक तो ये कुव्वत हुई कि लोगों के दिमाग पर असर, दिल पर असर डालना जो शायरी का काम रहा है, उनके खून में एक हलचल पैदा कर देना, दिमाग में, जहन में एक टर्बुलेंस क्रिएट कर देना, वो शायरी करती रही जो और दूसरी कोई चीज़ नहीं कर पाई। हमारे यहाँ हुआ ये है कि ये सिलसिला कि शायरी इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये सवाल अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए कि मेडिवल एजेस पूरे ये आप 18th सेंचुरी के बाद से, और ख़ास तौर पे 19th सेंचुरी के मिड से जो दुनिया जिस तरह से तब्दील होनी शुरू हुई है, उसके पहले तक कभी भी नॉन हिस्ट्री में शायरी की रेलिवेंस पर कोई सवाल उठाया नहीं गया। लेकिन सारे कल्चर्स में शायरी को एक प्लेस ऐसा हासिल था जो इनएविटेबल था। जब से ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो दुनिया पैदा हुई है, जिसमें कुछ और काम की बातें इंसान के सामने आ गई कि उसे ज़िंदगी बनानी है और उसे तरक्की करनी है, मटेरियल प्रोग्रेस करनी है,
उसे अपने तौर पे अपनी तकदीर बनानी है, और बहुत से सवालात जो उस ज़माने में पैदा हुए, ख़ास तौर पे जो तेज़ रफ्तार जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में तब्दीली आई, उसकी वजह से दुनिया बनी। तो उसमें फ़ौरन जो रिस्पांस फॉर रोमांटिक्स ने दिया, रोमांटिक पोइट्स वर्ड्सवर्थ और कीट्स और शेली और ब्लेक और सारे लोगों ने, दे डिस्कार्डेड दैट effect and consequence of that industrial revolution. They went back to the nature, or they tried to look at human being in its real face, in the reality of its existence. तो उस वक्त जो एक पर्दा पड़ा था नेचर और आदमी के बीच में, सोसाइटी और आदमी के बीच में, रियलिटी विद कैपिटल आर, रियलिटी और आदमी के बीच में, उस पर्दे को तोड़ के रोमांटिक पोइट्स ने एक ड्राइव पैदा की कि आदमी जिस तरह से चारों तरफ से घेरा जा रहा है, उस पर जो उसकी कॉन्शियस पर उसके जो प्रोसेसेस हैं, इमोशनल प्रोसेसेस, एक्सिस्टेंशियल प्रोसेसेस, उन पर जो पर्दे डाले जा रहे हैं, उनको चाक करके इंसान को उसकी अपनी रोशनी में देखने की कोशिश की जाए। फिर सारी दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई जो रूस में पैदा हुई, और मार्क्सिज्म की वजह से पूरी दुनिया में इंसान को बदलने की और एक नया इंसान बनाने, वो एक पूरा सिलसिला जो बहुत अजीम एक तब्दीली थी। सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा ख्वाब था जो उसके पहले इंसान ने उस तरह नहीं देखा था। लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट्स चले, उसमें सबसे पहले फ्रांस में एंगेज लिटरेचर की आवाज़ उठाई गई कि लिटरेचर शुड बी responsible to the processes of history and time and society, and there should be a commitment to change history or change the society. और उसमें बहुत सी बहसें शुरू हुई। फिर सवालात पैदा हुए कि शायरी कितने काम की चीज़ है। एक बहुत मशहूर जुमला है कि किसी ने कहा कि साहब शायरी जो है उतनी भी अहम नहीं जितना कि जूते बनाने का काम है, लेकिन जूते कम से कम पहने जाते हैं और इससे छाले नहीं पड़ते पाँव में, लेकिन शायरी सुनने से या पढ़ने से इस तरह की कोई हमें फ़ायदा हासिल नहीं होता है। लेकिन इसके बाद आज की दुनिया में हम देखें तो शायरी हमें अभी पिछले साल मैं अमेरिका के कई शहरों में गया, वहाँ एक जगह मैंने पूछा किसी से कि भाई आप किसी शायर को जानते हैं इस शहर में, शिकागो में शायद। तो हमारे जो होस्ट थे उन्होंने बहुत लोगों को फ़ोन किया कि इज़ देयर एनी पोएट इन दिस सिटी। तो एक 10-15-20 आधे घंटे तक वो पूछते रहे, लेकिन उन्होंने कहा सॉरी आई एम जस्ट नॉट एबल टू लोकेट एनी पोएट इन दिस सिटी, लेट मी ट्राई अगेन। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे यूरोप में तो खैर इतना नहीं है, लेकिन अमेरिकन कैनेडियन सोसाइटी जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी पीक पे है और ऑटोमेशन है और सारी चीज़ें हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी हर कदम पर आपके साथ है, आपको डिक्टेट कर रही है, तो वहाँ पर शायरी ज़िंदगी में उस तरह से दाखिल नहीं है जिस तरह से हमारी सोसाइटी में। हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो अलग अलग कल्चर्स हैं। हिंदी तमिल के बारे में और दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं और लैंग्वेजेस हैं उनमें पोइट्री की बहुत अहमियत है। हम बहरहाल अपनी सोसाइटी में जब हिंदी और उर्दू शायरी जहाँ हो रही है, तो आप ये देखिए कि मुशायरा होता है लाल किले में, तो मैं उसमें जैसे आप कहीं ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो लाइन लगी हुई है सुनने वालों की। और मैं आ रहा था एक बार, तो एक कोई अमेरिकन था या कोई यूरोपियन था, उसने he was just wondering what is happening। उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं लोग। मैंने कहा भाई they are going to listen to poets। मैंने कहा अरे so many people they are going for poetry। तो it was just unbelievable for him that so many people are so anxious to go to listen to poets for the whole of the night। उनके पास सिर्फ यही काम है इस वक्त रात भर तो अपनी रात को रोशन करने आए हैं। तो ये जो रोल है शायरी का वो अजीब व गरीब है। सारी दुनिया में इस किस्म का कोई ऐसी सोसाइटी मुझे नहीं मालूम है जिसमें शायरी को इतना इन्वॉल्वमेंट लोगों का हो। अब उसमें मुशायरे में कितनी शायरी होती है कितनी नहीं होती है, ये एक अलग बहस है। मैं समझता हूँ कि उसमें 30% या 20% शायरी होती होगी, बाकी
कुछ और होता है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ एक ऐसी है जो लिंकेजेस इन इंसानों में और शायरी में, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी वैलिड, वेरी इम्पॉर्टेंट। अब इससे पता चलता है कि शायरी एक गवाही है अपने इंसान होने की, अपने ज़माने में जो वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज़, उनको सच बनाए रखने की और उन पर ईमान कायम रखने की। तो ये जो गवाही है ये आज सिर्फ शायरी दे रही है, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे पास जहाँ हम इंसान को उसकी पूरी शक्ल में, उसके इंटीग्रेटेड होल में देख सकें। और शायरी, ज़ाहिर सी बात है कि सुनते ज़्यादा हैं लोग, पढ़ते कम हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा स्टूल है जो सेंसिटाइज करता है, आदमी को सेंसिटिव बनाता है। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आदमी को अपने अंदर अपने इंसान होने के एहसास को जिंदा रख सके। तो मैं समझता हूँ कि शायरी हमारे यहाँ अभी तक अपनी इस शक्ल में ज़रूर मौजूद है कि अभी तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है कि किसी ने सिर्फ ये सोच के कि शायर है ये आदमी, उसे अपनी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। Thank you so much, Farid Saab. And I think that's where I was drawing a clue from most of your points. And I was thinking of, is poetry very sparse in the society, firstly, as you say? And also, my point was, what are your views, whether Keki sir and Manjay sir, that like, whether it should be a language of selective academia or it should be a language of the masses? And I'll also come to that question because I mean, when you're talking about like a diverse thing, which is also good. So apart from that question, I think I would link it to like you were also talking, sir, तारों की कोई बस तारों से ज़्यादा मतलब एक ब्यूटी से ज़्यादा अहमियत है कि नहीं. So पोइट्री की सोशल इश्यूज एक पोएम में डालने की कितनी ज़रूरत है, वो कॉन्शियस एफर्ट होनी चाहिए कि नहीं उसकी, या फिर like most of your poems or even Keki sir's poem have somewhere been around, I mean, lot of, be it corruption, they have touched these areas of in their span of whatever span of your writings have been. So how do you see, first thing, I mean, is poetry sparse and should it be limited to universities and not the masses, or it should be in the masses? Or the second thing is, should social issues be a part of it? You see, firstly, this is a question which bedevils all genres. It bedevils films. There was a time when producers and directors of Indian films used to tell us that it is the rickshaw wala and the tonga wala who sees a picture 10 times, you see it once, so we are coming down to their level. At the same time, if you limit poetry only to academia and poets can only talk to themselves, that is also not very desirable. So I think most poets do both. I mean, it's the local as well as the folk as well as the classical that does come out. I mean, you read Fez, and Fez you'll have a poem with great depth. You will also have a poem, Philistini Bache, you know, and he'll go ahead with that, and that will be very easily assimilated by the audience. So you have to strike a mean, but that doesn't mean that you only go down to the last, to the lowest level always. You have to keep a balance. As far as social commitment is concerned, Milosh and all these people, Solzhenitsyn, as far as the novel was concerned, they were very keen on, you know, that poetry and literature itself should have some meaning and should relate to life, should relate to causes of the downtrodden, etc. But, for example, Dennis Brutus in South Africa, he used to write about apartheid. Now, who reads Dennis Brutus? So, committed poetry will also be compartmentalized and will have a short duration of life. The same could happen to partition literature.
but I don't want to hog the mic and make a long speech. I'll end there. I Your suggest question, we be a little short and more time to poetry than to just. your question has like two questions. The first is कि एक एकेडेमिया या मास्टर्स के लिए तो एक कविता की एक बड़ी आयरनी रही है शुरू से ही, जो कि मीर का एक शेर है कि गो मेरे शेर हैं खवास पसंद पर मुझे गुफ्तगू आवाम से है। तो एक हमारी शायरी को जो है खास लोग ही पसंद करते हैं, लेकिन हमारा जो हमारी जो गुफ्तगू है वो तो आम लोगों से है। तो मुझे लगता है ये विडंबना कविता के साथ शुरू से रही है कि वो जिनके लिए लिखी जा रही है वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं और वो उसके नज़दीक नहीं जा पा रहे हैं, और ये एक ऐसी दूरी है जिसमें कवियों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कविता के समाज तक पहुंचने के जो तमाम चैनल्स हैं उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं मासेस के लिए लिखता हूँ, और लेकिन मासेस के लिए ये मतलब ये हुआ कि मैं उसको डाइल्यूट नहीं करता, मैं कविता को डाइल्यूट नहीं करता, मैं उसको तरलीकृत नहीं करता हूँ, मैं उसको समझ में आने के लिए आसान नहीं बना देता हूँ। तो मैं अपनी शर्तों पर लिखता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि एक कविता पढ़ने की कुछ शर्तें होनी चाहिए, जैसे कि एक पेंटिंग को देखने की शर्तें होती हैं, या शायद हर कवि या हर लेखक की दुनिया में प्रवेश करने के लिए आपको आपके भीतर भी कुछ होना चाहिए। जैसे आप जेम्स जॉयस को उस तरह नहीं पढ़ सकते हैं, या मार्शल प्रूस्ट को उस तरह नहीं पढ़ सकते हैं। तो पिकासो से किसी ने पूछा था कि आपकी पेंटिंग समझ में नहीं आती है, तो उन्होंने कहा कि ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि मैं उसका संक्षेप आप दे दूं कि मुझे अनेक बार लगता है कवि क्या है, वो एक क्रिएटर है या रिकॉर्डर है। हम लोग क्या है, समाज के डॉक्यूमेंटेरियन हैं या हम लोग को क्रिएटर हैं। तो मैं ऐसे डायलेमा में रहता हूँ कि एक रिकॉर्डर जो है, मुझे लगता है कि हमें अपने समय को रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा और अपने समय के बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा। तो लेकिन अपने समय के बियॉन्ड भी इट इज आई थ्रू दिस टाइम दैट वी कैन गो बियॉन्ड दिस टाइम। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम एक साथ जो है वो सामाजिक कमिटमेंट भी, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, आप कभी सुबह का अखबार पढ़ लीजिए, वो इतना भयानक होता है कि, और मुझे कभी कभी लगता है कि अगर अखबार जो है वो एक डेली हिस्ट्री है, तो अगर फर्स्ट ड्राफ्ट है उस हिस्ट्री का, तो पोइट्री इज द लास्ट ड्राफ्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। फरहत साहब, सोशल इश्यूज़ पे जैसे हमारे यहाँ उर्दू में शायरी हुई और तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से उस तरह शायरी हुई, लेकिन अब जब हम उस शायरी को पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि वो शायरी से ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जब सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा शायरी में आने लगते हैं तो वो शायरी कहीं खो जाती है, वो शायरी नारेबाजी की नज़र हो जाती है। क्या आपको लगता है कि सोशल इश्यूज़ एक हद तक ठीक है, लिटरेचर में, अफसाने में, नॉवेल में तो उनकी स्पेस है, लेकिन शायरी में उनकी किस कदर स्पेस है? जैसे हम आप ही को पढ़ते हैं या और बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं जिन्होंने उस तहरीक के बाद शायरी शुरू की, तो उनके यहाँ हमें सोशल इश्यूज़ उस तरह नहीं मिलते हैं, लेकिन आज जब पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ शायरी है इनके यहाँ। लेकिन जब शायरी सोशल इश्यूज़ की नज़र हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायरी खो जाती है। ये इसमें बहुत आसान सी बात है ये कि जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि हमारे यहाँ मार्क्सिस्ट के आने के बाद से जो एंगेज लिटरेचर या कमिटेड लिटरेचर की बात की गई, तो उसमें अभी 10-15 साल 20 साल पहले नारा लगा था, ख़ासतौर पे हिंदी में, कि सीधा हस्तक्षेप समाज में। तो मेरा अपना जो ईमान है इस बात पर कि पोइट्री कैन नेवर मेक एनी डायरेक्ट इंटरवेंशन इन सोसाइटी। अगर शायरी अपने काम को छोड़ के ये काम करने लगेगी तो वो अपने आप को भी ख़राब करेगी और सोसाइटी को भी ख़राब करेगी। तो शायरी को शायरी रहना चाहिए, और अगर शायरी के अलावा और कुछ होने की कोशिश करती है तो इट इज़ ए डिससर्विस टू पोइट्री इन एक्ट ऑफ पोइट्री। तो अब इसमें सबसे बड़ा, आज की दुनिया में हमारे यहाँ सिर्फ सोशल इश्यूज़ या पॉलिटिकल इश्यूज़ ही नहीं हैं, जबकि बल्कि आइडेंटिटी के प्रॉब्लम्स आ गए। दलित लिटरेचर है और फेमिनिस्ट लिटरेचर है, तो ये छोटे छोटे खाने बांट के लोग अलग अलग ग्रुप्स में,
तो मैं समझता हूँ कि दैट शुड आल्सो बी रिजेक्टेड. आई रिजेक्ट ऑल आइडेंटिटी कैरेक्टराइजेशन ऑफ पोइट्री एंड लिटरेचर. कोई भी सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू शायरी के लिए वो एक रॉ मटेरियल तो हो सकता है, लेकिन वो शायरी में जिस तरह आता है वो पक के आता है. शायरी एक भट्टी है, आपके अंदर एक भट्टी है, उसमें सोशल इश्यूज भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी आ रहे हैं, जंगें भी आ रही हैं, लड़ाइयाँ भी आ रही हैं, मोहब्बतें भी आ रही हैं, सब पक रहा है, उसमें लावा पिघल रहा है और वो एक कंपोजिट होल होके निकलता है. वो पोइट्री में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ सोशल इशू है, यहाँ पॉलिटिकल इशू है, यहाँ आइडेंटिटी प्रॉब्लम है या क्या है क्या नहीं, कहाँ औरत है कहाँ मर्द है, कहाँ पे कम्युनिज्म है और कहाँ सोशलिज्म है और कहाँ कैपिटलिज्म है और कहाँ आतंकवाद है. मतलब ये सारी जो तकलीफ़ें हैं इंसान की, सारी जो खुशियाँ हैं, वो सब एक 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 पिघल के एक शक्ल में एक इमोशनल बर्स्ट आउट के तौर पे निकलती हैं, एस्थेटाइज होके निकलती हैं. तो शायरी इज बेसिकली एन एस्थेटिक एक्सपीरियंस. तो शायरी मस्ट बी kept as an aesthetic experience, not as a political statement or a social statement. अब इसमें सिर्फ यही है कि हम अपने आप को शायरी में रखें. कि बहुत छोटी सी मिसाल मैं दूंगा मुक्तिबोध की. मुक्तिबोध 20वीं सदी में हिंदुस्तान और हिंदी का सबसे बड़ा शायर हम कह सकते हैं उसको, और उतना ही कमिटेड शायर है. लेकिन आप उसकी पोइट्री पढ़िए तो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतने मेटाफर्स उसके इतने कॉम्प्लेक्स हैं, फैंटेसी इतनी है, तो आप उसको यही कह सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, कहाँ पर उसके अंदर की आग निकल रही है, कहाँ वो रिलेट कहाँ कर रहा है. वो तो एक नई दुनिया, एक नई रियलिटी क्रिएट कर रहा है. और दैट क्रिएटिविटी इज द नैरेटिव दैट पोएट्री क्रिएट्स. वो नकल नहीं करती, किसी समाज का नकल नहीं करती है, ना उसमें से कुछ उधार लेती है, बल्कि वो एक अपनी अलग दुनिया बनाती है जो उसके अपने मॉरल कॉन्शियस, अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स से पैदा होती है. Thank you, sir. And yeah, I completely agree with Mandesh sir that and also Kiki sir who said that an artist is basically to record his time in history and keep it. But at the same time, yeah, you can't just keep doing that, as he also said. It should be assimilation of everything together. So, sir, because we are running out of time, we will just come to the last question and maybe then move on to poetry. Because I, as a young poetry enthusiast, or as a poet, or as someone who's looking at the whole scenario across how it's going on across India, is there's always been this debate about the stage poet versus the page poet, and it's from time immemorial. And but today, with the increased practice of slam poetry, be it in the West or be it in India, and with open mics and all these things, do you think it is maligning poetry, or is it going to empower poetry, or is it going to mainstream? Because you were also saying कि poetry मतलब कम लोगों तक ही सीमित रहती है, तो उसके लिए क्या और आर्ट फॉर्म से कोलैबोरेट किया जाए, जैसे डांस हो गई, गजल्स हो गए, परफॉर्मेंस हो गई म्यूजिक के साथ, या सो एंड एंडिंग इट. So there were like two aspects. One is this, what I said. One is the sage poetry, the new upcoming thing, and the second part of the question would be, what do you think is the way forward of poetry in India? How do you perceive it to be, and the way it's going today? Thank you. I have nothing against poetry being read with music or with dance or what they call performance poetry, as long as the performance is good. First thing is, if it entertains more people, most welcome. I remember a British poet who came here. He was a performance poet, and I was in the audience, and a lot of people were in the audience, and he would go round and round, and he would say, please, when I have a rhyme, please say Rabindranath Tagore. And we in the audience kept saying, whenever that particular point reached by him, we said Rabindranath Tagore. He did a very fine job. But I also went to Cuba with some poets, our poets. And the poet said, I'll do a performance poetry. So what was the performance poetry? They took a book, and
walked this way reading the poems and then walked this way reading the poems. That is not performance poetry. So if it's done well, there's no harm. What was the second part? Way forward. What do you see as the way forward? The way forward, like liquid, like water, poetry will find its own level, and whether I theorize or anyone else theorizes, poetry will take its own course. Let it take its own course. Thank you. जी देखिए, परफॉर्मेंस पोइट्री बहुत अच्छी चीज़ है, और कविता को इस तरह की चीज़ों के ज़रिए मुझे लगता है हर कोशिश जो है वो कविता को पब्लिक स्फीयर में ले जाती है। तुलसी ने अपने जीवन में रामलीला शुरू की थी, और तुलसी की लोकप्रियता बहुत हद तक इससे भी हुई कि उन्होंने रामलीला शुरू की। अगर रामलीला शुरू नहीं करते शायद उनकी रामचरितमानस उतनी लोकप्रिय नहीं होती। तो इस तरह के दूसरे फॉर्म्स में जो कविता का जाना है वो हमेशा अच्छी बात है, वो अगर वो अच्छे हों, अगर अच्छी तरह प्रस्तुत किया गया हो। लेकिन शायद कविता को हिंदी में तो जिस तरह गाया और उस पर नृत्य किया जाता है वो बहुत ही क्रूड है, और वो उसमें कोई वो नहीं है, उसमें अर्थ का विस्तार नहीं है। तो मतलब कविता के मीनिंग को अगर उसका एक्सपेंशन होता हो तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब परफॉर्मेंस पोइट्री के नाम पर जो कुछ है वो, जैसे कि साहब ने कहा कि यहाँ से वहाँ तक जाना, उससे अच्छी परफॉर्मेंस तो खुद नागार्जुन जी, बाबा नागार्जुन करते थे। अगर आपने कभी देखा हो उनको, अगर आपने कभी सुना हो, देखा हो उनको, तो उनकी जो नाटकीय मुद्राएं थी वो एक अद्भुत, उनको उनसे सुनना, उनसे वो अपने आप अनुभव होता था, मतलब यानी है। और अनेक कविताएं ऐसी हैं जो शायद रीडिंग में जो पढ़ते हुए जिनके अर्थ खुलते हैं। एक कविता वो होती है जो कि एक रिटर्न टेक्स्ट, इतना अधिक रिटर्न टेक्स्ट है कि वो रिटर्न टेक्स्ट से बाहर नहीं आना चाहती है। लेकिन एक कविता ऐसी भी होती है जो अपने रिटर्न टेक्स्ट से बाहर, ओरल जब वो टेक्स्ट बनती है तो उसमें नए अर्थ खुलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर परफॉर्म, हाँ मेरे मन में ये बहुत, हिंदी में बहुत से लोगों ने, जैसे रघुवीर साहब हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने कविता को पढ़ने के कई तरीकों पर उन्होंने काम किया, और उन्होंने बहुत से कवियों की जो नाट्य प्रस्तुतियाँ की, उन्हें ये कई तरह से पढ़ा, उसमें कहाँ स्ट्रेस होने चाहिए, कहाँ गैप्स होने चाहिए, कहाँ साइलेंस हो, कहाँ उसमें कहाँ जो है उदात्त हो उसका और कहाँ धीमा हो। उन्होंने इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। या बहुत हल्का सा म्यूजिक हो, हल्का सा संगीत हो, उसमें हिंदी में जो भी कविताएं जो पढ़ी या गाई गई हैं उनमें बहुत ज़्यादा म्यूजिक है। तो उसमें जबकि मुझे लगता है म्यूजिक का उसमें बहुत ज़्यादा होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह के कई वो हैं। और जो आखिरी सवाल आपका था वो ये था कि मुझे एक कविता याद आती है, वो दिनकर जी की कविता है कि वो ये था कि एक माँ जो है, वो एक दिन चंद्रमा जो है अपनी माँ से शिकायत करता है कि मुझे तो मैं रात भर सफ़र करता हूँ और मैं जाड़े से मरता हूँ और मुझे बहुत जाड़ा लगता है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे तुम मुझे ऊनी कपड़ा सिला दो मुझे एक। तो माँ उससे कहती है कि बेटे मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कपड़ा जो सिलवा सकती हूँ, लेकिन तुम अपने पहले नाप, मुझे अपना नाप बताओ। तुम कभी तो बहुत छोटे हो जाते हो, कभी बहुत पतले हो जाते हो, कभी बहुत मोटे हो जाते हो, कभी ये हो जाते हो। तो ये कविता के साथ भी ये है, कभी हो सकता है बहुत पतली दिखाई दे और कभी वो आपको बहुत मोटी दिखाई दे, बहुत ज़्यादा दिखाई दे, कभी बहुत कम दिखाई दे, लेकिन वो कहीं जाती नहीं है, वो कहीं मरती नहीं है, मतलब। तो फरहत साहब, अब बिल्कुल हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे हैं। जाहिर है शायरी, जहाँ शायरी सुनने का वो हो तो वहाँ इस तरह की गुफ्तगू उतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं की जाती है। फरहत साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि एक तरफ तो शायरी है हमारी, एक तरफ हमारा समाज है। इस वक्त जो हमारा समाज है उसमें जिस तरह की शायरी हो रही है, जैसे परफॉर्म किया जाता है, जिस तरह शायरी हो, या हमारे मुशायरे हैं वो ख़ास तरह से एक तरह से जज्बात उभारने का भी एक तरह से काम करते हैं। जिस तरह हम यूट्यूब पे या मुशायरे में भी जाते हैं तो ख़ास तौर से बहुत सारे शायरों को सुनते हैं, तो लगता ऐसा है कि ख़ास कम्युनिटी के जज्बात को उभारने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो गुजरात राइट्स हों या कुछ और चीज़ें हों। तो उस तरह उनको शोहरत बहुत ज़्यादा मिल जाती है, वो एक तरीका है पढ़ने का। लेकिन अब मैं आप सब हैं यहाँ, मैं आपको एक दो शेर सुना रहा हूँ फरहत साहब के कि पैकरे अक्ल तेरे होश ठिकाने लग जाएं, पैकरे अक्ल तेरे होश ठिकाने लग जाएं, तेरे पीछे भी जो हम जैसे दीवाने लग जाएं, सबके जैसी न बना जुल्फ कि हम सादा निगाह,
तेरे धोखे में किसी और के शाने लग जाएं, या तेरे होठों के सहरा में, तेरी आंखों के जंगल में जो अब तक पा चुका हूँ उसको खोना चाहता हूँ मैं रोना चाहता हूँ, खूब रोना चाहता हूँ मैं, फिर उसके बाद गहरी नींद सोना चाहता हूँ। अब इस तरह की शायरी को मुझे नहीं लगता है कि परफॉर्मेंस की ज़रूरत है या उस तरह स्टेज पे पेश किए जाने की ज़रूरत है। शायरी अपने आप में, मुझे ये लगता है कि शायरी अपने आप में मनवा के रहती है। अगर वो शायरी है और अगर वो सिर्फ स्टेज की शायरी है तो जाहिर है स्टेज खत्म हुआ तो वो शायरी भी खत्म हो जाती है। आप फरत साहब इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि आप पढ़े जाने वाले शायर भी हैं और मुशायरे में भी आपकी शिरकत है। हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया है कि दो तरह के शायर इस वक्त, एक मुशायरे वाले शायर हैं, एक जो पढ़े जाने वाले शायर हैं। और ये इतना झगड़ा आगे बढ़ गया है ये कि मैं ये कहता हूँ कि मुशायरे में जो शायरी पढ़ी जाती है, कवि सम्मेलनों में भी यही हाल है, वो एक अलग genre है बिल्कुल, दैट इज़ मुशायरी। मैं उसको शायरी नहीं कहता हूँ, दैट इज़ अप्लाइड पोइट्री। और वो शायरी जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे काम करती है, मार्केट ड्रिवन पोइट्री, कि सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या चाहते हैं। हमारे एक शायर हैं जो कवि सम्मेलन भी जाते हैं और मुशायरों में जाते हैं। मुशायरे में प्रीडोमिनेटली मुस्लिम ऑडियंस होती है, तो वो ऐसे शेर पढ़ेंगे जिसमें ख़ास तौर पे जो कच्चे ज़ख्म हैं मुसलमानों के, उनके मसाइल प्रॉब्लम्स, उनको कैटर करते हैं, वो हो मच जाती है। कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वो आतंकवाद के खिलाफ और जो कवि सम्मेलनों का ईडियम है उसमें बात करते हैं। ये बहरूपी लोग हैं और मार्केट के डिमांड के तौर पे शायरी करते हैं। इट इज़ नॉट पोइट्री, इट इज़ समथिंग एल्स, इट इज़ उसके टूल्स इस्तेमाल करके कुछ किया जा रहा है। ये जो चीज़ है, रेख्ता में जब हमने अपनी वेबसाइट शुरू की तो ये बार बार सवाल आया, तो हमने उसमें दो हिस्से किए उसके, एक एडिटर चॉइस, एक पॉपुलर चॉइस। और पॉपुलर चॉइस ये है कि आप मीर गालिब हैं और जितने भी शायर हैं, तो उसमें जो आसान समझ में आने वाली शायरी है उसको एक पैकेज करके और उन लोगों को जो न्यू कमर्स हैं, पोइट्री की तरफ आ रहे हैं, तो उनको दिया जाए, ताकि वो एक चारा है कि उसको पकड़ेंगे तो वो सीरियस पोइट्री की तरफ उनको ढकेल के ले जाया जाए। तो ये काम हो रहा है और मुझे लगता है कि पिछले 10-15 साल में, मैं उर्दू शायरी के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि हिंदुस्तान में एक इतना बड़ा कल्चरल रिवोल्यूशन आ रहा है कि लाखों नौजवान उर्दू शायरी की तरफ, ख़ासतौर पे गज़ल की तरफ आ रहे हैं। आप फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, हमारी वेबसाइट 4 लाख फॉलोवर्स हैं इस वक्त फेसबुक पर, ट्विटर पे कम से कम 10,000 लोग हैं। और ये सारे लोग जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो गज़ल की शायरी में 2 मिसरों में एक शेर कह के, वो अभी बहुत से लोग हैं जो टूटे फूटे मिसरे कहते हैं, लाइंस कहते हैं, लेकिन एक मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे एक प्यास पैदा हुई है, कल्चरल थर्स्ट पैदा हुई है, उसको बुझाने के लिए शायरी की तरफ लोग आ रहे हैं। और ऐसे लड़के आ रहे हैं जो मैनेजमेंट के लड़के हैं, आईटी के लड़के हैं, हाईली पेड प्रोफेशनल्स हैं, वो दे आर कमिंग टुवर्ड्स पोइट्री। तो मुझे अगले आने वाले दिन जो हैं वो पोइट्री के हवाले से बहुत अच्छे, बहुत रोशन नज़र आ रहे हैं। और इस बात को मैं समझता हूँ अगर बढ़ेगा सिलसिला, और मुझे खुशकिस्मती है मेरी कि आई एम इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, आई एम ट्राइंग टू गेट इट अहेड।